Hello students, in this lecture we will study about the cell organelles. Cell organelles. What is cell organelle? So the cellular components are called cell organelles. Cell organelles are the specialized organelles present within the cells. कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. दीज ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग आउट एसेंशियल फंक्शंस. और उन ऑर्गेनल्स का कुछ खास फंक्शन होता है. सेल ऑर्गेनल्स आर न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi apparatus, etc. माइटोकॉन्ड्रिया. इसका स्ट्रक्चर. आउटर मेम्ब्रेन. It is smooth and is composed of equal amounts of phospholipids and proteins. It has a large number of special proteins known as the porins. The porins are integral membrane proteins and they allow the movement of molecules that are of 5000 daltons or less in weight to pass through it. The outer membrane is freely permeable to nutrient molecules, ions, energy molecules like the ATP and ADP molecules. And second membrane is inner membrane. So the inner membrane of mitochondria is more complex in structure. It is folded into a number of folds many times and is known as the cristae. This folding helps to increase the surface area inside the organelle. The cristae and the proteins of the inner membrane aids in the production of ATP molecules. Various chemical reactions takes place in the inner membrane of the mitochondria. Unlike the outer membrane, the inner membrane is strictly permeable. It is permeable only to oxygen, ATP, and it also helps in regulating transfer of metabolites across the membrane. यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ऐसे थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी और हासिल कर लें कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार किसने किया था. तो वो रिचर्ड अल्टमैन ने नामक वैज्ञानिक ने 1890 में इसका आविष्कार किया था और इसका नाम उसने बायोब्लास्ट दिया था. बाद में इन 1897 to 98 में बेंडा नाम के एक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था. ठीक है. और इस तरह से इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा. और ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब माइटो मीन्स थ्रेड होता है और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रैन्यूल्स. इसका स्ट्रक्चर जो है ये आप यहाँ पर अभी पढ़ ही चुके हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. तो ये दो मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है. एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जो फ्लेक्सिबल भी होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है और जिसमें कि क्रिस्टी लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए रहते हैं जिसको कि क्रिस्टी कहते हैं. तो अभी हम लोग ये पढ़ ही रहे हैं. तो फिर intermembrane space. It is the space between the outer and inner membrane of the mitochondria. It has the same composition as that of the cell's cytoplasm. There is a difference in the protein content in the intermembrane space. Matrix. Matrix क्या होता है? तो the matrix of the mitochondria is a complex mixture of proteins and enzymes. ये प्रोटीन और एंजाइम का मिक्सचर होता है. These enzymes are important for the synthesis of ATP molecules, mitochondrial ribosomes,
ट्रांसफर आरएनएज एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शंस, इसका फंक्शंस क्या है? The most important function of the mitochondria is to produce energy. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है, और जिसको कि एटीपी भी कहते हैं। द सिंपलर मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूट्रिशन आर सेंट टू द माइटोकॉन्ड्रिया to be processed and to produce charged molecules. These charged molecules combine with oxygen and produce ATP molecules. ठीक है, तो जब जो सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है उस समय एटीपी का फॉर्मेशन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी स्टोर्ड रहता है और उस ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग में लाया जाता है। इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स द सेल्स टू maintain proper concentration of calcium ions within the compartments of the cell. The mitochondria also help in building certain parts of blood and hormones like testosterone and estrogen. The liver cells mitochondria have enzymes that detoxify ammonia. The mitochondria also play important role in the process of apoptosis or programmed cell death. Abnormal death of cells due to the dysfunction of mitochondria can affect the function of organ. यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन का बताया गया है कि किस तरह से इसमें होता है और इसके बारे में डिटेल में हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें यही बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एंजाइम प्रोवाइड करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अब है सेकेंड ऑर्गेनल्स है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? ये जनरली सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और इनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है और इसीलिए इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं। और ये साइटोप्लाज्म में चारों ओर बिखरे रहते हैं, स्कैटर्ड पोजीशन में रहते हैं। इनका शेप, इसका कलर और इनका फंक्शन अलग अलग होता है और इसमें 3 प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? आर इलोंगेटेड डिस्क शेप्ड ऑर्गेनल्स विच कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स विच हेल्प्स देम मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। विच यूजेज एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, क्योंकि इसी के चलते इसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है। क्रोमोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स विच आर फाउंड इन फ्रूट्स एंड आर येलो, ऑरेंज एंड रेड इन कलर, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये रंगीन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं और इसमें जो पीला रंग का होता है वो जेंथोफिल होता है, नारंगी ऑरेंज कलर और रेड कलर का कैरोटीन होता है। तो ये जो होते हैं ये लिपिड में घुलनशील होते हैं, में आसानी से घुल जाते हैं। ये जो फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है और जो कलरफुल होने के कारण जो प्लास्टिड्स, जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये कलरफुल होते हैं, इसीलिए इसमें पॉलिनेशन होता है।
Leucoplasts are colorless plastids. They found in roots, seeds and underground stems. ठीक है, यहाँ पर प्लास्टिड्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट यहाँ पर बताया गया है। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और उसके बारे में यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में समझाया गया है, बताया गया है। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर, ये इम्पॉर्टेंट प्लास्टिड है जिसके बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो दे हैव अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दे हैव देयर ओन डीएनए, सर्कुलर एंड नेकेड, एंड राइबोसोम्स 70s राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होता है। ये क्या है थाइलाकॉइड्स? ये फ्लैटेंड डिस्क्स हैव अ स्मॉल इंटरनल वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमाइज हाइड्रोजन ग्रेडियंट अपॉन प्रोटोन एक्यूमुलेशन। ग्राना है। थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इनटू स्टैक्स टू इंक्रीज एसे रेशियो वॉल्यूम। इसका मतलब होता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, रेशियो ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। Photosystems. Pigments organized into photosystems in thylakoid membrane to maximize light absorption. Stroma. Central activity that contains appropriate enzymes and a suitable pH for the Calvin cycle to occur. And lamellae connects and separates thylakoid stacks ग्राना मैक्सिमाइजिंग फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बताया गया है क्लोरोप्लास्ट का, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेलुलर स्ट्रक्चर है। और ये जनरली ग्रीन लीव्स के मेसोफिल्स सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये चारों ओर से, ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये चारों ओर से डबल मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। और इसमें प्रोटीन की ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और इसमें स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है ना। और इसमें बहुत सारे परमिएबल संरचनाएं होती हैं जिसमें स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। और इसमें स्टैक्स, या हम लोग इसको कह सकते हैं सिक्कों का प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ग्रुप में, जिसको कि थाइलाकॉइड्स कहते हैं। और ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स को ग्रैनम कहते हैं। ठीक है, और एक क्लोरोप्लास्ट में कम से कम 40 से 60 ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं। और ग्रैना जो है वह प्लूरल फॉर्म हो गया, तो वो एक दूसरे से स्ट्रोमा लैमेली द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें इतना ही पढ़ना है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू।